Bismillah Rahman Rahim. Welcome back after many days. کئی ایشوز جمع ہو چکے تھے جن پہ بات کرنا ضروری تھا، تو آج بھی ایک ایشوز کی لسٹ ہے، لیکن اس میں دو تین تو بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک سب سے بڑی خوشخبری آج تو یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی پرائمری اسکول ٹیچرز کی کہ ان کو گریڈ 9 سے گریڈ 14 میں اپ گریڈ کیا جائے، وہ ڈیمانڈ ان کی پوری ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ آج خیر سے چیف منسٹر صاحب نے سمری بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی چیز کے سمری اپروو کر دیے۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں چیف منسٹر سندھ جناب سردار علی شاہ صاحب کا اور سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر کا، کہ انہوں نے ایک لانگ اویٹیڈ ایشو اور جو ایک پرانا مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں مبارکباد بھی دوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا پیٹے الف کی جو مرکزی قیادت ہے، میرے بھائی غلام رسول مہر صاحب، برادرم چلگری صاحب، اور ان کی جو مرکزی کابینہ کے جو لوگ ہیں، غازی خان صاحب ہے، زرداری صاحب ہے یا دوسرے لوگ ہیں، ان سب کا شکریہ بھی ہے، ان سب کو مبارکباد بھی ہے کہ انہوں نے اسٹرگل اس طرح سے کی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یا سندھی میں چوندہ آहिनि تو لال بھی لبے پریت بھی رہجی اچے۔ इहो का वॾी ॻाल्हि न आहे त प्रीत ख़तमु करे ऐं लाल हथ कजे، त उहो लाल कहिड़े कम जो जंहिंमें प्रीत ختم تھی۔ تو جو ایشوز میں بتا رہا تھا ان میں جو مین ایشو آج اپ گریڈیشن کا تھا وہ تقریباً حل ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ آج سمری چیف منسٹر صاحب نے منظور کر دی ہے، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور اس میں بتا رہا تھا کہ اس میں کس طرح سے غلام رسول صاحب نے اور انصار چلگری صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے معاملہ فہمی سے کام لیا، میٹنگز کی میرے ساتھ بھی اور منسٹر صاحب کے ساتھ بھی، اور انہوں نے نہ صرف ہمارے ساتھ میٹنگز کی بلکہ انہوں نے ہماری مدد کی، کیونکہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کئی چیزیں الجھ چکی تھی، کئی چیزیں اس طرح سے تھی، آپس میں گڑبڑ ہو گئی تھی کہ وہ مشکل سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کس طرح سے سلجھایا جائے۔ تو انصار چلگری صاحب اور ان کی ٹیم یہ میرے پاس آئے، ہم فائنانس میں گئے اور ایک ایک کر کے کیلکولیٹر نکال کے پھر ساری جو چیزیں تھیں وہ ان کو ہم نے درست کیا، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ایک ہی پیج پہ آ گئے۔ تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دیم، اور کریڈٹ گوز ٹو ہماری قیادت جو ہے سید سردار علی شاہ صاحب اور سید مراد علی شاہ صاحب کو، کہ انہوں نے یہ بڑا مسئلہ حل کرا دیا۔ اب صرف پروسیجرل کچھ چیزیں ہیں جن میں ڈیلے ہوگا، کچھ چیزوں کی وجہ سے، اور ڈیلے یوں ہوگا کہ اس سمری کی جو طریقہ کار ہے اس میں اپ گریڈیشن کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آج ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز بھی ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنے گی جو کہ انشاءاللہ ایک دو دن تین دن کے اندر میں بنا دوں گا، اور وہ کمیٹیز جو ہے وہ اسکروٹنائز کریں گے کہ کسی کے بھی خلاف اگر کوئی AND رولز کے تحت کوئی کارروائی پینڈنگ ہے تو وہ اپ گریڈ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کارروائی اس کے خلاف کنکلیوڈ نہ ہو جائے، وہ ختم نہ ہو جائے یا ایگزونریٹ نہ ہو جائے۔ کسی کے خلاف کوئی کورٹ کیس ہے، اس طرح سے این بلاک نہیں کر سکتے، ہم بائی نیم کریں گے، ہر ٹیچر کو اپ گریڈ ہم بائی نیم کریں گے۔ تو میں ٹیچر حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جیسے ہم یہ پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں
تو اس سے پہلے آپ چند چیزیں اپنے طور پہ کر لیں. وہ یہ کہ پرائمری اساتذہ جو ہیں وہ پہلے 2-3 چیزیں سرٹیفکیٹس لے لیں. وہ اپنے یا تو اگر کیمپس اسکول ہے تو ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس سے لے لیں یا ٹی او سے لے لیں کہ ان کے خلاف کوئی پینڈنگ انکوائری نہیں ہے, کوئی END رولز کوئی پینڈنگ انکوائری نہیں ہے, کوئی کرمنل کیس نہیں ہے ان کے خلاف, کوئی ایبسکانڈر وہ نہیں ہے. ایبسکانڈر کو ہم اپ گریڈ نہیں کریں گے. اس طرح سے اگر ان بلاک کرتے ہیں تو جو 5 سال سے نہیں آ رہا وہ بھی اپ گریڈ ہو جائے گا, بالکل نہیں. جب تک کہ اس کے خلاف ایبسکانڈنگ کی چارجز ختم نہیں ہو جاتی یا اس کو سزا یا ایگزونریٹ نہیں ہوتا تب تک وہ اپ گریڈ نہیں ہوگا. جب وہ ختم ہو جائیں گی چیزیں اس کے بعد وہ اس کا نوٹیفیکیشن نکلے گا. تو کچھ اس قسم کی ریکوائرمنٹس ہوں گی جو کہ اس میں وہ پوری کرنی ہوگی. اور ACR لینی ہے ہر پرائمری ٹیچر کو لاسٹ 5 ایئرس کی. تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں ہم 10-15 دن کے اندر. یہ ویکیشن کا ٹائم ہے. ویکیشن کے ٹائم میں کوشش کریں کہ آپ اپنے ہیڈ ماسٹر سے یا ٹی او سے جو بھی آپ کا امیڈیٹ باس ہے اس سے آپ 5 سال کی ACRs لے لیں. اگر کوئی نائب ٹیچر ہے تو اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس سے لے لیں. اگر ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس ہے تو وہ پھر ٹی او سے اپنے ACRs لے لیں. اور ACRs کے بغیر یہ کنڈیشن ہے, اس کے بعد بغیر اپ گریڈیشن نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ اپ گریڈیشن ہم ڈسٹرکٹ وائز اور تعلقہ وائز کریں گے. جس تعلقے کی اپ گریڈیشن کی جو ساری فائلیں ہو جائیں گی تو ہم اسی دن تعلقہ لیول پہ اپ گریڈیشن کا فائل ہم فائنل کر کے نوٹیفیکیشن نکال دیں گے. لیکن اس میں گھبرانے کی یہ یوں بات نہیں ہے کہ سب کی اپ گریڈیشن کی جو ڈیٹ ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. بے شک کسی کی 3 مہینے بعد اپ گریڈیشن ہو یا 6 مہینے بعد اپ گریڈیشن ہو, لیکن وہ وتھ افیکٹ فرام جو بھی ڈیٹ ہوگی, جو بھی ڈیٹ طے ہوگی کہ اس ڈیٹ سے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تو اسی ڈیٹ سے وہ سارے کے سارے اپ گریڈ ہوں گے. یہ پریشان نہ ہو. افواہ جو ہے وہ بہت چلتے ہیں. اتنے اصل افواہن کی بازار ڈاढी گرم ہوتی ہے. تھوڑی ॻाल्हि ते हिकु राति अफ़वाहुनि जूं फैक्ट्रियूं आहिनि उहे अफ़वाह हलाइणु शुरू करे छॾींदा आहिनि. ऐं ॿियो उन जी अफ़वाहनि ते लॻण वारा तमामु उस्ताद त हिकु पढ़ियलु लिखियलु तबिको आहे. महिरबानी करे थोरो सोचे सम्झी कंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार कंदा करियो. बग़ैर सोचणु सम्झण जे तव्हां उन अफ़वाहनि ते लॻी पओ था त कंहिं बि अफ़वाह ते न लॻिजो. ऐं ॿियो इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त जीअं असांजी रिक्रूटमेंट या ॿिया सिलसिला असांजा बिल्कुलु शफ़ाफ़ आहिनि त अपग्रेडेशन जो तरीक़ो बि शफ़ाफ़ हूंदो. मूंखे कंहिं बि क़िस्म जी जेकॾहिं कंहिं बि लेवल ते का शिकायत मिली आहे त तइलीक़े लेवल ते, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते या कंहिं बि लेवल ते जेकॾहिं हिन में कंहिं बि क़िस्म जे कंहिंखे तंग कयो वियो आहे, कंहिंखां पैसा घुरिया विया आहिनि, वरिता विया आहिनि या कंहिं बि क़िस्म जी का कंसिडरेशन कई वई आहे त उन ते आउं ॾाढो सख़्तु एक्शन खणंदुसि. कंहिं क़िस्म जी कोई बि तव्हांखे हिकु टको पैसो ख़र्चु करण जी ज़रूरत न आहे. हा, अलबत्त ही जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि उहे तव्हां पूरियूं करे छॾियो. उहे असां कमेटी ठाहींदासीं. रिक्वायरमेंट्स असां ॿुधाए छॾींदासीं, पब्लिक करे छॾींदासीं त उन्हनि रिक्वायरमेंट्स खे तव्हां कंप्लीट कयो. हिकु दफ़ो आउं ॿीहर मुबारकबाद ॾींदुसि सिंध जे सभिनी प्राइमरी उस्तादनि खे जेके 9 ग्रेड में हुआ वॾे अरसे खां. उन्हनि खे अपग्रेडेशन जी हाणे सिर्फ़ु चंद ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे जो तइलीक़े लेवल जा असां जेको बि तइलीक़ो सभिनी खां पहिरीं इहा रिक्वायरमेंट पूरी करे ऐं असांखे ॿुधाईंदा त असां उन तइलीक़े जो नोटिफिकेशन असां कढंदा वेंदासीं. अहिड़े नमूने सां सॼी सिंध जा कुझु महीननि जे अंदरि टोटल नोटिफिकेशन निकिरी वेंदा. ॿी ॻाल्हि त कुझु अर्सो जॾहिं मूं जॉइन कयो हो त मसइलनि जा अंबार हुआ ऐं बेशुमार मूंखे सम्झ में न अची रहियो त किथां खां कहिड़े मसइले खे शुरू कजे. लेकिन असां शुरूआति कई ऐं आहिस्ता आहिस्ता असां केतिरा ई मसइला हल कंदा वियासीं. अञा बि मसइला रहनि था ऐं जेके मसइला हलंदा रहंदा. ज़िंदगी आहे त मसइला हूंदा, तंहिंजे करे इहे मसइला ज़िंदगी भर ख़तमु कोन थींदा, मसइला हलंदा रहंदा. पर इन्हनि मसइलनि जे हल जे लाइ असांजूं बि कोशिशूं जारी हूंदियूं, तव्हांजूं बि कोशिशूं जारी हूंदियूं. ॻाल्हि इहा आहे त सब्र खां कमु वठिजे ऐं पैनिक न कजे. पैनिक करण सां ट्रैफिक जैम थी वेंदी आहे, रस्तो जैम थी वेंदो आहे. हिकु रस्ते तां जेकॾहिं 10 गाॾियूं हिकिड़े टाइम ते गुज़रंदियूं त 10 मां हिकु बि गाॾी न गुज़री सघंदी, रोड जैम थी वेंदो. तरीक़े सां, सब्र सां, बग़ैर पैनिक जे जेकॾहिं असां ऐं तव्हां गॾिजी कमु कंदासीं त तव्हांजा सभु जाइज़ मसइला इनशा अल्लाह ताला हल थी वेंदा. हलिया कंहिं बि क़िस्म जे प्रेशर, कंहिं बि क़िस्म जे दबाव जी असांखे का ज़रूरत ई न आहे.
असां हूअं ई मसइला हल कंदासीं। तव्हां केतिरा ई मसइला असां अहिड़ा बि हल कया आहिनि जिन जे लाइ असांखे कॾहिं कंहिं बि कोन चयो, न कंहिं इनफ़रादी तौर ते न कंहिं इज्तमाही तौर ते चयो, पर उहे मसइला असां पंहिंजे तौर ते असां पंहिंजी ज़िमेदारी महसूसु कंदे उहे हल कयूं पिया। तंहिंजे करे ॿिया मसइला बि असां पंहिंजी ज़िमेदारी सम्झी असां हल कंदासीं। NCHD ऐं BECS टीचर्स जो वॾो मसइलो हो। उहे हज़ारे उस्ताद आहिनि, उन्हनि जो सर्विस स्ट्रक्चर जो मसइलो हल थी चुको आहे। उहो काबीना में मसइलो हो। काबीना पंहिंजे गुज़िरियल इजलास में काबीना मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। हाणे जीअं ई मिनट्स ईंदा त असां उन्हनि जो सर्विस स्ट्रक्चर जारी करे छॾींदासीं। त उन्हनि जो सर्विस स्ट्रक्चर ईअं हूंदो त उन्हनि खे अॻे को थोरा पैसा मिलंदा हुआ, हाणे मिनिमम वेज जेका आहे 25,000 पर मंथ उन्हनि खे मिलंदी सैलरी ऐं या रिम्यूनरेशन जेको बि चइजे, ऐं उनखां पोइ उनजे 5% सालाना उन में वाध बि थींदी रहंदी, ऐं कुझु ॿियूं कंडीशन्स आहिनि जेके असां उन में शामिलु कंदासीं। तंहिंजे करे हाणे NCHD उस्तादनि ऐं BEC उस्तादनि जी जेका बि बेचैनी हुई उहा इनशा ताला ख़तमु थी चुकी हूंदी। JEST ऐं ECT जेके 2018 जे पॉलिसी जे तहत आया, 2019 में जेका मूं मालूमात कई आहे त 2019 जे अक्टूबर नवंबर में जिन जी पहिरीं अपॉइंटमेंट थी हुई त उन्हनि खे अञा 3 साल पूरा न थिया आहिनि, 2.5 साल थिया आहिनि। त हूंदे बि नौजवाननि इहो ॾिठो त शायदि ॿिया स्ट्रगल कनि पिया, त असां बि स्ट्रगल कयूं, मथां असां पोइ हिते रहिजी वञूं। जेका मूंखे उन्हनि जी इहा स्ट्रगल बेवक़्ताइती लॻी ऐं वक़्त खां पहिरीं लॻी। ऐं वक़्त खां पहिरीं कंहिं बि शइ जे लाइ जेकॾहिं ज़ोर लॻाइबो आहे उनखे सिंधी में चवंदा आहिनि कचो ज़ोर। उन कचे ज़ोर सां पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ ईंदी आहे, ॿियो कुझु कोन थींदो आहे। त उन्हनि खे पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ ॾिनी ऐं हुननि खे अञा टेन्योर पूरो करण में बि किन खे अञा 6 महीना खपनि, त किन खे साल खपे, किन खे 8 महीना खपनि, उनखां पोइ हू रेगुलर थींदा। त हिकिड़ा माण्हू जेके 68 साल नौकरी करण खां पोइ रेगुलर थिया आहिनि, तॾहिं बि हुननि को एतिरो पैनिक क्रिएट कोन कयो जेतिरा ही नौजवान आहिनि जेके अञा हुननि खे पूरो न थियो आहे, टेन्योर बि पूरो न थियो आहे, तंहिंजे बावजूदि बि उहे कोशिशि कनि पिया। त असां उन्हनि खे चवंदासीं त सब्र खां कमु वठो, धीरज खां कमु वठो, पैनिकी न थियो, तव्हांजो मसइलो बि हल थी वेंदो। पर बहरहाल तव्हांजी इतलाह जे लाइ इहो ॿुधाए छॾियां त तव्हांजी समरी बि अॻिते वञी चुकी आहे, ऐं जॾहिं उन समरी उहा मंज़ूरी मिलंदी त उनखां पोइ उहा काबीना में ईंदी ऐं काबीना उन ते डिसीशन कंदी, ऐं इनशा ताला तव्हां बि हिकिड़े ॾींहुं ॿियनि वांगुरु रेगुलर थी वेंदा। ऐं जेको तव्हांजो मसइलो आहे त असां खां ॿिया जेके सीनियर थी वेंदा त असां इहा कोशिशि कंदासीं, कई आहे बल्कि हुन समरी में लिखियो आहे त तव्हांजी सीनियरिटी जेका आहे बाय लेंथ ऑफ सर्विस असां कंदासीं, भरपूर कोशिशि कंदासीं इन सिलसिले में। IBHM का मसला ये था कि उनके लिए कोर्ट ने हुक्म किया था कि इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इनको भेजा जाए, वहाँ उनकी टेस्ट होगी और उसके बाद वो उनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी एज पर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो हम तो भेज चुके थे अपने तरफ से। देखिए एक चीज़ ये होती है ये कि एक चीज़ डिपार्टमेंट के लेवल पे कोई चीज़ रुकी होती है, एक चीज़ डिपार्टमेंट तो कर लेता है, किसी डिपार्टमेंट से बाहर कहीं रुकी हुई होती है तो उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट अखलाकी तौर पे आपके साथ है और आपकी मदद करता रहा है और करता रहेगा। आपको याद होगा, मैं आपको ये बता दूं, रिमाइंड करा दूं IBHMs को कि जब आपका ये मसला हुआ था तो मैंने रिक्वेस्ट किया था अपने मिनिस्टर सरदार अली शाह साहब को। ही वॉज सो काइंड, उन्होंने टाइम लिया था मुर्तज़ा वहाब साहब से और हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन का वादा किया और उन्होंने फिर उस पर अमल भी किया। हमने कमीशन को लिखा कि इनको रेगुलराइजेशन के लिए टेस्ट ली जाए, लेकिन कमीशन ने फिर 2 इश्यूज़ हैं। एक तो कमीशन की अभी तक होनी है, रिस्ट्रक्चरिंग तो हो चुकी है, अभी उनकी चेयरमैन की और मेंबर्स की पोस्टिंग होनी है, और उसके बाद फिर लेकिन मीनवाइल उन्होंने एक और लेटर लिखा है, कुछ क्वेरीज़ की हैं, जो भी हम इंशाल्लाह ताला उन क्वेरीज़ का जवाब दे देंगे। इसीलिए आपको भी पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठें, और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है, तो इसीलिए अब वैकेशन ख़त्म हो तो आप अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पे तवज्जो दें।
اب रिक्रूटमेंट जो हमारा एक बड़ा मसला रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं उनकी बातों पे जाऊँ तो वो जो बहुत शोर मचा रहे थे, अब तो उनको मिल भी गए, ऑफ़र लेटर्स भी मिल गए, बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, अपॉइंटमेंट के बाद उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है बहुत लोगों की, और फर्दर जो है वो प्रोसेस में भी है। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, और जितनी बड़ी रिक्रूटमेंट होती है तो उसके मसाइल भी बड़े होते हैं। ये 1500 लोग नहीं थे कि एक डेढ़ हफ्ते या महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाता। ये 50,000 प्लस हैं अब तो, बहुत, और सीटें भी खाली हो चुकी हैं 50,000 से बहुत ज़्यादा, और होंगी, और भी सीटें खाली होंगी तो वो भी सब इनको मिलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट अब तक रहते हैं उनको भी ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द आपकी भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, और आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। 18 तारीख से पहली बैच जो है उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो जिनको आर्डर्स मिल चुके हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जिनको ऑफ़र्स मिले हैं वो अपने कंप्लीट करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ कर चुके हैं। लेकिन आप ये भी देखें, इस चीज़ को भी आप अप्रिशिएट करें कि हमारे डायरेक्टर साहिबान को कितने, हर एक कैंडिडेट के 5 ऑफ़र्स पे साइन करना पड़ता है, 5 ऑर्डर्स पे साइन करना पड़ता है। तो एक एक डायरेक्टर के पास कितना काम होगा, और ये सारे फिर एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरती हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए ये चीज़ भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। एक और चीज़ मैं कह दूं कि जो हर साल एक इशू आता है, हर साल शिकायत भी होती है कि कुछ स्कूल्स में किताबें नहीं मिली, किताब न मिलिया सही असांखे कोर्स या किताब न मिलिया। हाणे असांजी चेयरमैन साहब सां कल्ह ई मीटिंग थी आहे, मिनिस्टर साहब मीटिंग कई आहे चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सां, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे। ऐं असां इहो सिस्टम बि हिकिड़ो डिवाइस कयूं पिया, किताब असांजा रवाना थी चुका आहिनि, टीओज़ वटि किताब पहुची चुका आहिनि। तंहिंजे बावजूद बि जेकॾहिं कंहिं वटि किताब टीओज़ वटि न पहुता आहिनि त उहे महिरबानी करे फ़ौरन चेयरमैन साहब सां राब्तो कनि। सिस्टम असां इहो ठाहियूं पिया त असां हिकिड़ो कंप्लेंट सेंटर ठाहियूं पिया, हिकिड़ो मोबाइल नंबर ॾींदासीं ऐं हिकिड़ो नंढिड़ो चंद लाइन्स जो हिकिड़ो प्रोफार्मा ॾींदासीं त जंहिं बि स्कूल खे जेकॾहिं नथो मिले, इहे बुक्स नथा मिलनि, त उहो रुगो नंढिड़ो प्रोफार्मा हथ सां भरे उन ते व्हाट्सअप करे छॾींदो। स्कूल जो नालो, सेमिस कोड, चिल्ड्रेन केतिरा आहिनि स्कूल में, इहा मालूमात हूंदी, ऐं हेड मास्टर जो नालो या एडमिनिस्ट्रेशन जो नालो लिखी उहे व्हाट्सअप कंदा त उन्हनि जो उन्हनि खे रिस्पॉन्ड कयो वेंदो, ऐं उन ते किताब जेके आहिनि उहे पहुचाया वेंदा। फर्नीचर जो वॾो इशू रहियो आहे, जेको फर्नीचर जो इशू घणे भाङे वॾे स्केल ते इंशाअल्लाह ताला विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स इहो इशू बि हल थी वेंदो। मूं वटि अञा ताईं वरी के कैंडिडेट्स इहो अचनि था त सर असांजी ऑफर भी थी वियो, अपॉइंटमेंट भी थी वई, पोस्टिंग भी थी वई, पर हाय घोड़ा कंदा था अचनि त असांजी जेको पोस्टिंग आहे उहो असांजे ॻोठ खां 0.5 किलोमीटर परे थी आहे, असांजे ॻोठ में छो न। त महिरबानी करे अहिड़े क़िस्म जो को बि कैंडिडेट मूं वटि न अचे जंहिंजी जिते पोस्टिंग थी आहे 3 साल हुनखे उते पोस्टिंग करणी आहे, ऐं इन ते कोई कंप्रोमाइज़ न आहे। इहो कोई कैंडिडेट जो या उनजो हक़ न आहे त हुनखे तव्हां पढ़ियो न आहे शायदि पंहिंजो जेको तव्हां बॉन्ड लिखी ॾिनो आहे, उन बॉन्ड में इहो लिखियलु आहे त जेकॾहिं तव्हां 3 सालनि खां पहिरीं जेकॾहिं ट्रांसफर जी कोशिशि बि कंदा त यू मे लूज़ योर जॉब। तंहिंजे करे ख़बरदार रहो, ऐं इन क़िस्म जी कंहिं बि क़िस्म जी सिफ़ारिश या कंहिं बि क़िस्म जो जेकॾहिं तव्हां अप्रोच कयो त तव्हांखे शोकाज़ नोटिस जारी कयो वेंदो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जेका आहे उहा 3 सालनि ताईं साॻी रहंदी ऐं उन में का बि तब्दीली न ईंदी। इहे वॾा इशूज़ हुआ। बाक़ी थोरो आऊं 2012 ऐं 2013 जी अपॉइंटमेंट ते ॻाल्हाए छॾियां। 2012 जेके अदर कैडर जिन खे असां चऊं था, उन अदर कैडर में छा थियो उहो तव्हां मूंखां वधीक बहितर ॼाणो था।
उन में बेशुमार माण्हुनि कूड़ियूं डिग्रियूं जमा करायूं हुयूं। असां उहे कूड़ियूं डिग्रियूं चेक करायूं आहिनि। बेशुमार डिग्रियूं कूड़ियूं निकितियूं आहिनि। B.Ed जूं कूड़ियूं डिग्रियूं, CT जूं कूड़ियूं डिग्रियूं, PTC जूं कूड़ियूं डिग्रियूं, जाली डिग्रियाँ। और हम ये सोच रहे हैं कि इन जाली डिग्रीज जो जिन्होंने पेश की हैं उनके खिलाफ हम FIR लाज करवाएं। तो और जो लोग रहते हैं मैं उनको गुजारिश करूंगा कि अगर आपने जाली डिग्री जमा करवाई है तो आप अपने बराए मेहरबानी अपने पेपर्स वापस ले लें। अगर ये डिसीजन हो गया कि FIR लाज की जाएं, जो कि मैटर कोर्ट में भी है, और हम कोर्ट को कहेंगे कि इनके खिलाफ FIR लाज करें। इन्होंने फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट के साथ कि इन्होंने जाली डोमिसाइल या टेम्पर्ड डोमिसाइल किसी और की डिग्री लेके उस पर अपना मिटा के और अपना नाम एडोब फोटोशॉप के ज़रिए लिख के और डिग्री चिपका दी और वो अपॉइंटमेंट आर्डर ले लिया। और अपॉइंटमेंट भी कई आर्डर्स जो हैं वो जाली हैं। उसके अलावा बहुत सारी और जालसाजी भी है उसमें। अरबिक टीचर आते हैं, बहुत सारे अरबिक टीचर, कई अरबिक टीचर ऐसे हैं जिनको एक जुमला भी अरबी का पढ़ना नहीं आता और ना ही एक जुमला अरबी का बोलना आता है। ड्राइंग टीचर ऐसे आते हैं कि जिनको पेंसिल पकड़ना नहीं आती, उनने कभी कोई ड्राइंग नहीं की, सिखाना तो दूर बात है, खुद अपने हाथ से कभी ड्राइंग नहीं की, उनको मैं ड्राइंग टीचर कैसे मान लूँ। जो जेन्युइन हैं 2012 वाले हम उनको रिटेन करेंगे, जो जेन्युइन नहीं हैं हम उनको ऑर्डर करके नोटिफाई करके उनको डिपार्टमेंट से बाय बाय कर देंगे। 2013 का NTS का जो कैंडिडेट्स रह गए थे आते हैं हमारे पास कि हमने 60 मार्क्स ली हैं, 65 मार्क्स ली हैं, 78 मार्क्स लिए हैं, वो UC बेस्ड था। हम उनको कहते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने आपसे कम मार्क्स लिए हैं और उसको अपॉइंटमेंट मिली है तो आपका राइट है, आप आके हमें बताएं सबूत के साथ कि फ़लाँ की कम मार्क्स थी मेरी UC में। ऐसा नहीं कि आप कहें कि थाना बुला खान वाले की कम थी, नहीं, आपकी अपनी UC में किसकी कम थी और उसको मिल गया है, आप बताएं, हम आपको अकोमोडेट करेंगे। बाकी इस तरह से पास करना उस कानून में खुद में मौजूद है कि पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एनी हाउ जॉब दी जाएगी। इस तरह से अभी जो करंट रिक्रूटमेंट है इसमें 40 पे पास करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सबकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। रिक्रूटमेंट तो इतनी होगी कि जितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कोर्ट्स में गए हैं, 400-500 पिटिशन्स फाइल किए हैं और कोर्ट का हुक्म जो है वो सबका एक ही हुक्म है, एक ही ऑर्डर है कि उस वक्त की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन करें और एक स्पीकिंग आर्डर पास करें। उसमें कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि एनी हाउ इनको जिन्होंने भी अप्लाई किया है कोर्ट में इनको अपॉइंटमेंट आर्डर देते हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग लॉ को पढ़ें और उसको पिटिशन को पढ़ें। आप में से कुछ लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को कि कोर्ट ने हमें हुक्म दे दिया है इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि इनको आर्डर दें, फिर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले नहीं दे रहे। कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। कोर्ट ने कहा है कि उस वक्त की पॉलिसी के मुताबिक इनकी ग्रीवेंस सुने, इनको सुना जाए और फैसला किया जाए। तो हमने बहुत सारे लोगों को सुना है हैदराबाद में, कराची में, और ये सुनने का अमल जारी है। सुनने के अमल के साथ साथ हम स्पीकिंग आर्डर भी पास कर रहे हैं और हमने मेरे ख्याल में कोई 200-250 लोग ऐसे हैं जिनके हम रिजेक्ट कर चुके हैं, जिनकी प्ली हम रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको ये गुजारिश है कि आप अपना वक्त, पैसा, तवानाई ज़ाया ना करें इन चक्करों में। अगर आपका सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में कंसिडर हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट आपसे कम मार्क्स वाला था और उसको आप अकोमोडेट किया गया था, अदरवाइज़ कोई और चांस नहीं है। इसलिए आप हमारा भी टाइम ज़ाया न करें और आप अपना भी टाइम ज़ाया ना करें। आप जब ये कहते हैं कि जी 5000 पोस्टें दे दें हमें, 10,000 पोस्टें दे दें, वो नहीं दी जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ ही मेरा ख़याल है कि जो इम्पोर्टेंट और जो मेन पॉइंट्स थी उन पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसके बाद जो पॉइंट्स होंगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी वो अपग्रेडेशन की थी।
اور اس کا خوشخبری کے لیے میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری قیادت کا، سید سردار علی شاہ صاحب کا، سید مراد علی شاہ صاحب کا، اور غلام رسول مہر کا، انتظار چھلگری کا، غازی خان کا، اور باقی سب لوگوں کا شکریہ کہ سب لوگوں نے افہام و تفہیم سے ایک محبت والے ماحول میں بیٹھ کے باتیں کی، اور باتوں کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالا۔ اور کئی چیزیں جو ہے وہ باتوں کے ذریعے حل ہوتی ہیں، زور کے ذریعے نہیں، طاقت کے ذریعے نہیں۔ طاقت کے ذریعے چیزیں الجھ جاتی ہیں، کبھی سلجھ نہیں سکتی۔ اسی کے ساتھ ہی خدا حافظ، اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد پھر جو ایشوز ہوں گے میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔